If you are planning to give VIT Triple E exam in 2026, or if you are planning to join VIT in 2026, so this video can save you from making the wrong decisions. Hi everyone, I'm Lakshmi and I'm first year student at VIT University. My branch is CSE AIML and I'm here to help you out with all the doubts and query about VIT. I'll tell you the rank versus category, I'll tell you the fee structure category wise, and everything that you need to know before joining VIT. I'll tell you the honest truths about the hostel life and how expensive it is to live in VIT. I'll tell you the pros and cons of joining VIT, the unbiased, the unsponsored truth about this college. So make sure you watch my video till the very end. So first, let's talk about the four campuses of VIT. The first is Vellore campus. It is the main campus and it is the oldest campus of VIT. So obviously it has better placements. Now comes the Chennai campus. It is the second largest campus of VIT and less crowded. Now talking about Bhopal and AP Andhra Pradesh campus, both are still growing. Opportunities are still growing in these two campuses. Usually, Andhra Pradesh campus is considered to be better in infrastructure. Now talking about which campus should you choose. अगर आपका रैंक अच्छा है तो ऑब्वियसली आपको वेल्लोर कैंपस मिल रहा होगा तो आप उसी में जाएंगे. But if you're not getting into Vellore or Chennai campus, so I think you should go with AP campus because it has a better infrastructure and I think there's a little edge in opportunities. Usually, what I have seen is कि South Indians basically choose AP wala campus and North Indians stick to Bhopal wala campus because it is said that both campus are equal. That's what they say. So talking about the branch in VIT, people usually take CSC and there are many specializations of CSC like cybersecurity, AI, ML, digital forensic, then gaming. There are multiple of specializations in a CSC, so you can choose one. But the most famous branch, and I feel like the most worth it branch is CSC Core and CSC AI ML. In VIT Bhopal campus, you won't get data science as a specialization of CSC. और अगर आपको डाटा साइंस ही लेना है तो यू कैन गो विद एमटेक वाला कोर्स, इंटीग्रेटेड एमटेक 5 ईयर का जो प्रोग्राम होता है, क्योंकि 4 ईयर बीटेक कोर्स में देर इज नो डाटा साइंस program. Know a friend of mine who has taken data science as her specialization and she is from integrated MTech program. I know people who have taken EC and aerospace. Obviously choosing a branch is your choice, but most likely that people choose and take Is CSC. but as far as majority of us is concerned, people usually go with CSE and its specialization. And if you are going into VIT, so the most worth it specialization would be CSE AI ML, or slightly we can say cybersecurity and digital forensic. And of course, core is like core. जो भी फीस है वो कैटेगरी वाइज होती है, तो मैं आपको एक बार फी स्ट्रक्चर अच्छे से समझा देती हूँ. अगर आपका एक अच्छा स्कोर है VIT ट्रिपल एग्जाम में तो आपको कैटेगरी 1 मिलेगा और कैटेगरी 1 की फीस सबसे लोएस्ट होती है, इट्स 1.98 लैक्स. और जैसे ही आपकी रैंक थोड़ी थोड़ी सी बेकार होने लगती है तो उसके साथ आपकी कैटेगरी बढ़ने लगती है. देयर इज कैटेगरी 1 से लेकर कैटेगरी 5 तक. अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आपको कैटेगरी 1 मिलेगा विच हैज़ लाइक द लोएस्ट फीस, और अगर आपकी रैंक बेकार है तो आपको कैटेगरी 2 3 4 5 तक मिलेगा. और एक एक कैटेगरी के साथ आपकी फीस बढ़ती जाती है, विच मीन्स कि कैटेगरी 1 की फीस 1,98,000 है और कैटेगरी 5 की फीस अप्रॉक्स 5 लाख के आसपास है. सो दैट्स व्हाट हैपेंस. और एक एक लाख आपकी फीस पर कैटेगरी इंक्रीज होती जाएगी, राइट. तो सपोज फॉर एग्जाम्पल आपको काउंसलिंग के समय में बहुत ध्यान देना पड़ता है. सपोज आपका कोई रैंक है जिसमें आपको CSE वेलोर कैंपस कैटेगरी 3 में मिल रही है या कैटेगरी 2 में मिल रही है, तो सेम रैंक पे आपको चेन्नई कैंपस में कैटेगरी 1 में CSE मिल जाएगी, या फिर AP या भोपाल कैंपस में आपको कैटेगरी 1 में सेम ब्रांच मिल जाएगी जो आपको वेल्लोर में सेम रैंक 3 या आपको 2 पे मिल रही होगी. तो आपको इस बात का बहुत ख्याल रखना होगा. VIT एग्जाम देने के बाद जो काउंसलिंग का आता है कि आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन सा कैंपस लेना है, कौन सी कैटेगरी. आई कुड सजेस्ट यू तो VIT वेल्लोर में इट्स वर्थ कि आप कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 तक जाओ. एंड सम पीपल से कि कैटेगरी 3 तक भी इट्स नॉर्मल टू टेक एडमिशन इन VIT वेल्लोर कैंपस. यू हैव टू डिसाइड कि आप कैटेगरी 2 तक ले रहे हो या कैटेगरी 3 तक ले रहे हो. आई वुड से सेफ ऑप्शन इज कैटेगरी 2 तक. अगर आपको मिल रही है CSE, इट्स वेल एंड गुड, आप ले सकते हो वेल्लोर कैंपस में. कमिंग टू चेन्नई कैंपस, चेन्नई कैंपस में भी आई वुड से कि इट्स गुड. अगर आपको कैटेगरी 2 तक मिल रही है तो इट्स गुड. मूविंग टू भोपाल एंड AP कैंपस, I would not suggest you to take admission in category 2 for any branch because कैटेगरी 2 तक आते आते आपकी फीस बहुत ज़्यादा हो जाती है एंड आपका
ROI खराब होने लगता है. If you are getting category 1 CSC भोपाल और आंध्र प्रदेश वाले कैंपस में, then only you go for VIT, otherwise you can just skip this college. तो that's what I will suggest. So that's all about fees. और आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हो और डिटेल में, बट दैट्स हाउ थिंग्स आर डिवाइडेड. पीपल आस्क मी नो इन माय कमेंट बॉक्स कि आपकी फ़ीस क्या है, VIT की फ़ीस क्या है. तो आप ये वीडियो देख लो, आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि आपकी फ़ीस ऐसे नहीं डिसाइड हो सकती है. आपकी फ़ीस आपके कैटेगरी पे ज़्यादा डिपेंड करती है कि आप कौन सी कैटेगरी ब्रांच वर्सेस रैंक. तो हियर आई विल पुट अ फोटो ब्रांच वर्सेस रैंक का, आप एक बार उसको रेफर कर सकते हो. So I forgot to record that up to last year, people got CSE in VIT Vellore up to 10,000 rank in category 1 or maybe 2, but they can potentially get CSE core in category 1 in Chennai campus. You can only sit in counseling round for all 4 campuses if you have less than 1 lakh rank. Moving on to हॉस्टल लाइफ. ओके, डेफिनेटली हॉस्टल लाइफ इज़ द बेस्ट. कभी अलग से आपका जब VIT का आपको कॉलेज मिल जाएगा, कैंपस आपका डिसाइड हो जाएगा, तो हॉस्टल की भी अलग से काउंसलिंग होती है, जिसमें आपको आपका बेड टाइप बताना रहता है, और आप नॉन AC लोगे कि AC लोगे, आप प्रीमियम वाला हॉस्टल लोगे या नॉन प्रीमियम लोगे, ऐसी चीज़ें आपको बतानी रहती है. आप मेस कौन सा टाइप का, कौन सा मेस आप चूज़ करोगे, ठीक है, कौन सी कैटरिंग बेसिकली आप चूज़ करोगे. तो बेसिकली आपको ये सारी चीज़ों का भी एक काउंसलिंग होता है. तो वो मैं एक बार और एक डिटेल्ड वीडियो में मैं इसका कवर करूँगी जब आपका ये वाला टाइम पास आने लगेगा. सिंस वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम, आई विल जस्ट गिव यू अ ओवरव्यू. गर्ल्स हॉस्टल में सिंगल बेड का ऑप्शन नहीं है. इट स्टार्ट्स विद 2 बेड, 3 बेड एंड 4 बेड. 4 बेड का बेड टाइप इट्स द बंक बेड, और 3 बेड तक आपको प्लेन बेड मिल जाएगा, एंड देयर इज नो बंक बेड अप टू 3 बेड टाइप. ठीक है, पर आपके पास दोनों AC और नॉन AC दोनों के ऑप्शंस हैं. ऑब्वियसली AC का प्राइस थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम है, नॉन AC का प्राइस कंपैरेटिवली कम है. 20,000 का डिफरेंस होता है नॉन AC और AC में. बंक बेड आर यूजुअली लेस प्राइसी कंपेयर टू फ्लैट बेड्स. हॉस्टल्स इधर की थोड़ी कॉस्टली हैं कंपेयर टू अदर प्राइवेट कॉलेजेस. जैसे कि मेरी फ्रेंड्स दूसरे दूसरे कॉलेजेस में हैं. मेरा 3 बेड टाइप है, एंड आई हैव अ पीपल अदर कॉलेजेस, सो उनका बेड टाइप 2 है, एंड उनकी और मेरी फीस में बहुत डिफरेंस है. लाइक आई हैव मच हायर फीस देन व्हाट दे हैव. तब हॉस्टल लेना इज़ नॉट वर्थ इट आई फील, क्योंकि हॉस्टल की फ़ीस एक्चुअली ज़्यादा है कंपेयर टू उनकी फैसिलिटीज़ से. बाय द वे, आई हैव मेड अ वीडियो गिविंग यू अ हॉस्टल रूम टूर, सो यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक आउट दैट वीडियो. तो अब उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हॉस्टल रूम्स कैसे होते हैं, एंड प्राइस का एक मैं यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट प्रोज एंड कॉन्स ऑफ हॉस्टल लाइफ. तो देखिए, हॉस्टल लाइफ VIT के कैंपस की बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है. और कौन है जो इसका यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ है. अभी ही इस साल CSE कोर में देयर आर 4,000 स्टूडेंट्स. आप समझ रहे हो, एक ब्रांच में 4,000 स्टूडेंट्स. देन एक ब्रांच में भी नहीं, एक स्पेशलाइजेशन में AIML में देर इज़ अप्रोक्स 2,600 और 1,600 to 2,600 स्टूडेंट्स, कुछ ऐसा ही है. तो आप समझ रहे हो, एक ब्रांच के एक स्पेशलाइजेशन में इतने सारे बच्चे, एंड देर आर मल्टीपल स्पेशलाइजेशंस. तो यहाँ पे भीड़ तो बहुत ज़्यादा है. FFCS एंड VIT. तो FFCS का फुल फॉर्म है फुल्ली फ्लेक्सिबल क्रेडिट सिस्टम, विच मीन्स कि आप अपना टाइम टेबल से डिसाइड कर सकते हो, आप अपने फेवरेट फैकल्टी से पढ़ सकते हो और अपने हिसाब से टाइम स्लॉट्स चूज़ कर सकते हो. इफ़ यू आर अ मॉर्निंग पर्सन तो आप 8:30 वाली क्लासेस ले सकते हो, और अगर आप जल्दी नहीं उठ पाते हो तो आप 6 o'clock से 7:30 वाली क्लास जो शाम को होती है वो वाली ले सकते हो. कमेंट सेक्शन कि आप सोच रहे हो कि नहीं VIT एग्जाम देंगे. दिस वीडियो हेल्पफुल. मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द लाइक बटन, एंड कमेंट डाउन below what are your queries, and I'll try to answer all of them. And this is very early on I'm making this video. I'll definitely make another series of video in which I'll be helping you regarding the hostel life, college, and everything, all the necessary documents which you need to carry for onboarding, etc, etc, etc. So this will be a whole lot of a series kind of. So make sure that you subscribe to my channel so you don't miss out on any such videos. And bye bye, see you. So yeah.